be ready with the things. Okay, so hi, good evening, everyone. Today we are going to have a class on the basic psychology. The SSB interviewer or the officers you want to be, you should have the basic psychology and the psychology in which through which you can become an officer or through which you can uh, be successful in SSB. Okay, so this is me, Mandeep Singh. I'm the psychologist in the KD Defense Brigade, and we are going to conduct the basic class for the first class, the basic psychology class, so that you will make notes. Okay, and thereafter you will have, you can have a revision of that thing, and let's get started with the class. Now, see the first slide show you the analysis of the psychology in the SSB. So what is the current analysis of the psychology in SSB, what they are actually want in you, and how they are assessing you, whether you are fit for army or not, whether you are fit for their job or not. Okay, this is what they were looking for. So we are going to find out the minute detail and discussions. We will discuss it also, and we will find out that what else we need to inculcate in yourself so that you'll implement those OLQs, you will have those skills, and you will have those personalities, so that they will, okay, accept you as an officer, they will accept you as an cadets. And then after, okay, now in the first one, the analysis of the psychology in SSB. Now let's start with the first slide. There is a, let's do the deep and complete analysis of the psychology in SSB. This is one of the most crucial part of the SSB selection process. So psychology is one of the most crucial part in the your service selection. Okay, and the most crucial part after that, it is evaluate your inner personality, attitude and officer like quality. तो ये क्या चीज इन evaluate कर रहे हैं, आपकी inner qualities क्या हैं, आपका मेंटल स्टेट क्या है, आपकी एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द थिंग्स, एंड योर ऑफिसर लाइक क्वालिटी थ्रू द साइंटिफिकली डिजाइंड साइकोलॉजिकल टेस्ट. एज आई टोल्ड यू इन एन एग्जांपल कि अगर मुझे चेक करना है कि आउट ऑफ यू हु आर द मोस्ट फास्ट, हु इज द मोस्ट फास्टेस्ट रनर, तो मैं क्या करूंगा कि आपको एक 100 मीटर की रेस दे दूंगा और आपको बोलूंगा 100 मीटर रेस में आप रन करोगे. ओके, देन आई विल इवेल्युएट, देन आई विल फाइंड आउट, ओके, टेस्ट नंबर 27, 21, 28 एंड ऑल, you are fit or you are the fittest one. Okay, so based on that analysis, I'll find out that you are the fastest runner. Fine. That same thing is happening in the psychologist test also. So these are designed by the psychologist, these are designed by the experts, or based on your stimulus, based on your automatic response within 15 to 20 seconds or 30 seconds, वो analyze कर लेते हैं कि whether your health is in a good state or whether you are a good you're good to be an officer or not. Okay, and we have to, and your see, आपके एक्शंस ये OLQs भी डिपिक्ट करते हैं कहीं ना कहीं. सी, while sitting, while eating, while dealing with the friends, while dealing with the relatives, while in crisis, while in pressure, while happiness, हर जगह पर यू आर डिपिक्टिंग द OLQs, यू आर डिपिक्टिंग योर ऑफिसर लाइक क्वालिटी, वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. तो अगर एकदम से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, या एकदम से कोई क्राइसिस आता है, या एकदम से कोई प्रेशर आपके ऊपर आता है, आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी लाइफ को, उन सिचुएशंस को, तो उससे भी आपके OLQs डिपिक्ट होते हैं. ठीक है, ओके. तो पहली हम बात ये करते हैं कि पर्पस ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट इन एसएसबी. पर्पस क्या है, देखो इन सिंपल वर्ड, बिफोर वील प्रोसीड विद द व्हाट इज राइट रिटन इन द स्लाइड, मैं ये कहता हूं कि अगर एक ऑफिसर बिल्कुल राइट अच्छे माइंडसेट का नहीं होगा, तो क्या होगा, हो सकता है कल को 120 बंदों की नफरी को मरवा दे. ठीक है, हो सकता है कि कल को कुछ ऐसा ड्रॉबैक हो जाए कि एक आदमी के डिसीजन से कितने लोगों की जान चली गई है. ठीक है, तो इट इज नॉट ओनली अ लॉस टू द फैमिलीज, नॉट ओनली द लॉस टू द सिटी, टू द कंट्री, बट इट इज ऑल्सो लॉस टू द फैमिलीज मेंबर, whose son, whose father, whose husband, whose brother is under your command.
ठीक है। तो इस हिसाब से अगर एक ऑफिसर को चूज करना है, अगर एक लीडर को चूज करना है, तो उसकी मेंटल हेल्थ को, मेंटल स्टेट को एंड हाउ ही रिएक्ट, उसके क्वालिटीज को चेक करके ही उसे एक ऑफिसर बनाया जाता है। ठीक है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन मैनी वीडियोज, इन मैनी शॉर्ट वीडियोज ऑल्सो, कि एसएसबी आपका एक कंपटीशन नहीं है। एसएसबी में आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उस चीज़ का टेस्ट है। मोर ओवर एसएसबी में आप कोई नॉलेज चेक नहीं करते हैं, एसएसबी में आपकी मेंटल हेल्थ को चेक करते हैं, और एसएसबी से आपका ये पता चलता है कि वेदर यू आर इन गुड स्टेट ऑफ माइंड और प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है या फिर कैसा है। ठीक है। ओके, सो व्हाट इज गिवन इन द स्लाइड, द मेन aim of the SSB psychology test is to analyze your subconscious personality, who you really are, not what you pretend to be. So आपकी psychology analysis की जाती है SSB process के थ्रू। आपकी psychology analysis से ये पता चलता है कि आप एक्चुअल में हो कौन, ये नहीं आप प्रिटेंड करके बता रहे हो। अगर आप किसी 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 से भी आप मिलते हो, तो एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीने तक वो अच्छा ही प्रिटेंड करेगा, बट व्हाट अबाउट आफ्टर 3 मंथ्स? अब आफ्टर 3 मंथ कैसा प्रिटेंड करेगा ये मुझे नहीं पता है। हो सकता है ही इज अ डेवल माइंड, हो सकता है ही इज नॉट ऑनेस्ट, हो सकता है ही इज प्रिटेंड टू बी ऑनेस्ट बट ही इज नॉट ऑनेस्ट एट ऑल। सो आर्मी डोंट हैव दैट टाइम, द फोर्सेस डोंट हैव दैट टाइम कि 3 महीने तक एक अफसर को देखते हैं, बाद में कभी भी इसको निकाल देंगे, बिकॉज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा जो उसकी ट्रेनिंग पे, जो उसकी इन सब चीज़ों के ऊपर वो करते हैं। अब इस चीज को चेक करने के लिए कि वेदर यू फिट फॉर द जॉब, वेदर आपकी मेंटल कंडीशन ठीक है, मेंटल हेल्थ ठीक है, इन चीजों को चेक करने के लिए वो एक साइकोलॉजिस्ट टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और वो एक एसएसबी का पार्ट भी है, जो कि होगा आपका सेकेंड डे ऑफ योर एसएसबी, दैट इज द साइक टेस्ट। ठीक है। अब ये साइक टेस्ट में यू कैन फेक योर आंसर्स इन इंटरव्यू और ग्रुप टास्क, बट in the psychology your automatic response reveals your true character. Exactly, आपका जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है वो आपका ट्रू करेक्टर रिफ्लेक्ट करता है। तो आपका ट्रू करेक्टर रिफ्लेक्ट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में काफ़ी सारे फेजेस हैं, जैसे कि एसआरटी हो गया, जैसे कि डब्ल्यूएटी हो गया, टैट हो गया, एसडीटी हो गया। इन सारी चीज़ों से आपका वो जो जो रिस्पॉन्स है, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, वो क्लिक होता है और पता चलता है कि वेदर आप अच्छे हो, वेदर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, वेदर हाउ डू यू डील विद द क्राइसिस। ओके, नाउ so what they were assessing you for your automatic response within 20 seconds or 30 seconds, what they are assessing you, your leadership quality. Your leadership quality will be assessed through it, your integrity and honesty will be assessed through it, your mental stamina, team spirit, emotional balance, social adaptability, confidence and responsibility, initiative and determination. So leadership and initiative, social responsibility and empathy, effective intelligence, presence of mind, every aspects of the psych is tested in this psychological test. सारे के सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद एनालाइज किया जाता है कि ठीक है, यू आर गुड एट मेंटल हेल्थ, यू आर गुड डिपिक्टिंग दी OLQs also, so you are fit for army or navy or armed force. Okay. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसएसबी साइकोलॉजी बैटरी। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, वो किस कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज योर टैट, दैट इज थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। व्हाट इज टेस्ट, इमेजिनेशन, ड्राइव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप क्वालिटी। ओके, सो I have already told you in many classes that there is a difference between PPDT and TAT. दोनों में डिफरेंस होता है। पहला जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि PPDT की पिक्चर्स बहुत हेजी होती हैं, अनक्लियर होती हैं, वेयर एज जो टैट है, टैट की पिक्चर जो होती हैं वो बहुत क्लियर होती हैं। ओके, सो टैट की पिक्चर्स क्लियर होती हैं और PPDT की पिक्चर बहुत हेजी होती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन टैट एंड योर PPDT। ओके, फिर मैंने एक एग्जांपल लेता हूं कि ए परसेप्शन और परसेप्शन में फर्क क्या है। देखो, परसेप्शन का मतलब है कि सपोज आई शो यू दिस कप ऑफ टी, ओके, दिस इज योर perception and you will write something about this cup of tea. Now if I want your a perception, then you will write that
how it tastes. You might be it might taste properly adrak wali, properly cardamom tea, and there, so the taste is different. So when you're writing about the taste, it is called a perception. Okay, and I have given you the example with the apple. So in PPDT you will write down this is apple. In TAT you will write down the taste about this apple. Okay, so this is the main difference between PPDT and TAT. After that there is word association test. They will give you some words, and after that you will with a quick response, with the automatic response, you have to write letters. You have to write what is there, what comes in your mind, what the first thing comes in your mind. Okay, that will reflect your true who you are. Okay, attitude, mindset, and values of yours. Then comes the SRT, situation reaction test. This will showcase your decision making, effective intelligence, reflexes, and presence of mind, and your courage. Okay, so in one of the SRT, एक SRT था जिसमें ये situation थी कि अगर if you see a foreigner was harassed by a group of beggars outside the temple, what would you do? एक फॉरेनर है जो मंदिर के बाहर काफी सारे उसको बेगर्स हैं वहां पर, वो उसको हरास कर रहे हैं, मे बी आस्किंग फॉर द मनी, मे बी आस्किंग फॉर सम फूड और समथिंग। तो आप क्या करोगे? तो अगर आप डायरेक्टली ये करोगे, यू विल कन्फ्रंट देम, यू विल कम इन बिटवीन देम, आप बोलोगे कि प्लीज डोंट हरास देम, और एक बार दो बार समझाओगे, और उसके बाद आप मे बी अथॉरिटी को यू विल रिस्पॉन्ड द अथॉरिटी। तो हाउ वुड यू रिएक्ट दिस? दैट यू कन्फ्रंट, and if they are not willing to listen, then you'll report this incident to the authority. Who is the authority? The mandir authority or something. Okay, so this shows that you depicted, you will have some courage. Okay, now SDT, self description test, self awareness and consistency. In self description test, what your father thinks of you, what your parents thinks of you, or what is your relation with your parents, so and what is your relation with your friends, and your teachers. Okay, what your teachers think of you. So self awareness and consistency will be depicted from the SDT. Okay, so let's analyze each in depth now. Let's go for this stat. Now in this stat picture you will be shown 12 pictures including one blank for 30 seconds. तो 12 पिक्चर्स शो होती हैं, जिसमें से 11 पिक्चर्स में कुछ फोटोज होंगी और 12वीं पिक्चर में कुछ नहीं होगा, वहां पे ब्लैंक फोटो होगी, और ब्लैंक फोटो के ऊपर भी आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो एक पिक्चर डिपिक्ट होगी आपको 30 सेकेंड्स के लिए, और 30 सेकेंड्स के बाद वो पिक्चर का आप यू विल राइट डाउन द स्टोरी इन 4 minutes. After that the another picture will be depicted to you 30 seconds, then you will have to write down your response to it in 4 minutes. Okay, and followed by the blank picture, then you have to write a story in the blank picture within the 4 minute time. अच्छा, इसके बाद क्या है? What it measures? Your imagination, how you perceive the situation. आपका इमेजिनेशन क्या परसीव कर रहा है? हाउ यू परसीव द सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन. आफ्टर दैट योर मोटिवेशन, व्हाट ड्राइव्स द मेन कैरेक्टर. आपको क्या मोटिवेट कर रहा है? आपका जो प्रोटोगोनिस्ट है, आपका स्टोरी का जो हीरो है, व्हाट ड्राइव्स यू टू मोटिवेट. उसके पीछे पर्पस क्या है आपका उस प्रोटोगोनिस्ट को चुनने का. ओके, फिर उसके बाद क्या कहता है? योर इनिशिएटिव, वट एक्शन द हीरो टेक्स. जो भी आपने स्टोरी में हीरो बनाया है, प्रोटोगोनिस्ट बनाया है, उसने क्या एक्शन लिया है. अब जो उसका एक्शन होगा, जो आपने स्टोरी में बताया है, वही आपका इनिशिएटिव होगा. अगर आपने स्टोरी में बताया कि राहुल अ यंग बॉय फ्रॉम हु इज अ एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर वेंट टू हिज होम and hometown, find out the agriculture practices was not as the modern techniques were, so they will put a campaign, they will tell the others that you should perform your activities in this manner. Okay, तो उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है that your action, the initiative you have taken. Okay, तो आपके पिक्चर में राहुल ने इनिशिएटिव लिया था, but it is actually taking by you. They will depict, the psychologist will depict that this person wants his character, this person want to take the initiative through the character Rahul. Okay, after that your outcome, how do you conclude the problem. आप
प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हो। द प्रॉब्लम विच राहुल फाइंड कि जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं गांव में फार्मर्स के द्वारा, दे आर स्टिल कन्वेंशनल, दे आर स्टिल कन्वेंशनल, और वो बहुत ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, और उन ओल्ड प्रैक्टिसेस की वजह से यील्ड अच्छा नहीं है। ठीक है, दीज आर द प्रैक्टिसेस विच दे आर फाइंडिंग। सो अब उन प्रैक्टिसेस की कैसे उन्होंने ओवरकम किया, उन्होंने कैंपेन चला दी, कैंपेन चलाने के बाद वो सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, सारी नहीं तो कमवट समवट कुछ तो रिजॉल्व हुई है। दिस इज द आउटकम। नाउ द आइडियल स्टोरी फ्रेमवर्क क्या होगा। आइडियल स्टोरी फ्रेमवर्क में आप कैसे लिखोगे आप आइडियल स्टोरी। हीरो आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट योर हीरो, योर जब एज, उसका हीरो क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, विच हैज टू बी सिमिलर विद यू। आप अगर अपनी स्टोरी का हीरो फाइंड कर रहे हो, दैट हीरोज एज, जेंडर, सिमिलैरिटीज आपके जैसी ही होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यू विल इमेजिन सम सुपरमैन, यू विल इमेजिन आयरन मैन, और आयरन मैन ने कुछ ऐसा किया और सब कुछ ठीक हो गया। यू नो व्हाट्स योर कैपेबिलिटीज, और आप अपनी जुरिस्डिक्शन में और आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या काम कर सकते हो, उसी प्रकार से आप अपना हीरो, आप अपना प्रोटोगोनिस्ट चूज करोगे इन योर स्टोरी। देन सिचुएशन, रियलिस्टिक, चैलेंज और अपॉर्चुनिटी। सिचुएशन जो आप चूज करोगे, कि सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन ये थी कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम थी। अब सिचुएशन एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है ना, आप ये सिचुएशन नहीं चूज कर सकते हो कि कोई ऐसी चीज फैल गई है जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ओके। सो सिचुएशन शुड बी रियलिस्टिक एंड शुड बी चैलेंजिंग एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सॉल्व दैट सिचुएशन। देन एक्शन, लॉजिकल पॉजिटिव अप्रोच बाय द हीरो। तो आपके जो एक्शंस होने चाहिए वो एक लॉजिकल होने चाहिए, उसकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये आपके एक्शंस होंगे। आफ्टर दैट आउटकम, ऑप्टिमिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट। आप अपनी अप्रोच में ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, कंस्ट्रक्टिव रहोगे, और यही आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना हीरो जो चूज करोगे, दैट विल बी सिमिलर टू योर एज, जेंडर। Okay, then you will choose the person who is ready to accept challenges. Then you will choose the person who is ready to take a realistic challenges. After that logical and positive approach के साथ उस challenges को overcome करेगा, और एक optimistic और constructive result देगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने ऐसा कर दिया कि आपका गांव अभी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 खेती कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट चैलेंज भी रियलिस्टिक होना चाहिए, और उसका आउटकम भी ऑप्टिमिस्टिक और बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट होना चाहिए। कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मत देना अपनी स्टोरी में। ओके, देन कम्स योर आफ्टर दैट, देन कम्स द की। नाउ कैन यू सी दिस पिक्चर, there is a picture is shown in front of you, hope you can see this picture. um, okay, now can you see this picture? See it for 10 seconds. I'll give you 10 seconds, or you can pause the video. Okay, okay. Now everyone will find out their protagonist, and they will answer me in the comment section what they find, what is their story. You can write and I will definitely comment on your response. मैं आपके जितने भी responses होंगे, आप अपनी PDF को भी अटैच कर सकते हो। यू कैन सेंड इट टू मी ऑन द केडी डिफेंस चैनल, और देयर इज अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ओके, सो आप अपनी इस पिक्चर को भेजो, और पिक्चर को आई विल गिव यू द एग्जैक्ट रिस्पॉन्स। नाउ द की, शो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपरेशन, करेज एंड लीडरशिप। की क्या है, आपको टैट स्टोरी में लिखने के लिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वर्क करो। आप अपने कॉपरेशन करो, आप कॉपरेशन के साथ उस चीज़ को रिजॉल्व करो। Your courage is that you have taken the initiative. Leadership quality, that you have started the campaign, and with your leadership quality everyone is listening to you. Now avoid supernatural endings, revenge और self glorification। ना तो आप अपने आप को सुपरमैन, बैटमैन, शक्तिमान कुछ नहीं बोलोगे, आप अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिवॉर्ड नहीं दोगे, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं बताओगे कि ऐसा कुछ हो गया। नाउ इन द स्टोरी, अ मैन स्टैंडिंग नियर द फ्लडेड एरिया, एक बंदा था जो फ्लडेड एरिया के पास। स्टोरी क्या है, दिस इज द पिक्चर नो। अच्छा,
the theme or the theme of the story will be the actions which is displayed by your protagonist. आप अपना थीम कैसे लिखोगे? जो भी एक्शन आपके हीरो ने बनाया है, जब बताया है, जब करने वाला है, वही आपका थीम होगा। ठीक है, अब आप थीम के बाद ये लिखोगे ही क्विकली ऑर्गेनाइज वॉलंटियर्स। उसने आप थे, आपने देखा फ्लडेड एरिया है, आपने वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज किए इफेक्टिंग हिज विलेज, एंड ही क्विकली ऑर्गेनाइज वॉलंटियर कोऑर्डिनेटेड विद द लोकल अथॉरिटी। किसी भी लोकल अथॉरिटी, सरपंच के साथ, सबसे बड़ा सबसे नजदीकी लोकल अथॉरिटी तो वही है। After that, for rescue and arrange some food and shelter for affected family, his timely leadership saved many lives. Cut short story, very short story, and you can even narrate this story good when you are asked to narrate it. Okay. Now, I have written another story for this. A man of courage and compassion. There is another story. There is another theme, which is a man of courage and compassion. So, courage he has depicted while going into the water and saving the lives of the people, and the compassion for humanity, social adaptability, social empathy, which he is showing. Okay, so during the monsoon season, एक another story है, एक दूसरी story है. Heavy rain caused flood in a small village. Ramesh, a young social worker, was standing near the flooded area assessing the situation. He immediately contacted the local disaster management team and arranged for the evacuation of the villagers trapped in their homes. With the help of volunteers, he organized rescue boats, distributed food packets, ensured safe shelter for the children and elderly people in the nearby school building. Okay, after that, despite the risk, he personally helped many people reach safety, maintained constant communication with the authority for the further assistance. He quickly thinks, his quick think, leadership and calm attitude helped save many lives. Okay, this is the story which I made, and now this story, when you narrate this story, you will narrate it this manner. So narration is against the precise version of your story. The story has to be of 450 words. Narration has to be less than 450 words, and narration has to be completed in less than 1 minute. Okay, so your narration is against the precise version of your story. Fine. After that, अच्छा, नरेशन देखो, रमेश, इसकी जगह रमेश कर लेता हूं, राज की जगह. A college student saw flooded affecting village. He quickly organized volunteer, coordinated with the local authorities for the rescue, and arranged food and shelter for the affected families. His timely leadership saved many lives. Here also, in this big story, he saved many lives. His quick thinking, organized manner, and leadership saved many lives. Isn't it? Don't you think so? That story's narration part should include only that much only. But narration has to be completed in 40 seconds. Clear? Okay, चलो अब देखते हैं आपका outcome. What is the outcome? That he saved many people. His selfless service was appreciated by the local authorities. जो selfless appreciation है, service है, it's appreciated by the local authority, and later took part in the planning better drainage system for the village to prevent such incident in the future. So the outcome है कि उसको appreciation मिला, और उसने एक effective planner का भी काम किया जब उस village की जो ड्रेनेज सिस्टम था उसकी प्लानिंग कर रहे थे. क्लियर? आफ्टर दैट, नाउ the moral is that he has depicted courage, presence of mind, social responsibility can turn any crisis into opportunity for service. So that social crisis can turn any crisis into opportunity or into any responsibility and opportunity for the service to the society. Okay, you got it? Okay, so that has to be your tat. Now the psychological interpretation in this story, which is showing you. So what is the psychological interpretation? If you write that story, the interviewing officer or the psychologist will interpret. क्या interpret करेगा? कि आप में leadership quality है, आप में empathy है under pressure,
आपके अंदर पॉजिटिव इनिशिएटिव लेने की क्षमता है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, आपके अंदर कामनेस है और सोशल अवेयरनेस है। कि सोशल अवेयरनेस है तभी तो उन्होंने देखा कि भाई अगली बारी प्लानिंग में भी काम करेगा, उसके लिए सोशल अवेयरनेस है, तभी तो उसको पता चला कि बच्चों के लिए कुछ खाने का, फूड मेडिसिन कुछ पहुंचाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव आउटकम, नॉट जस्ट रेस्क्यू बट लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट। सो कंस्ट्रक्टिव आउटकम जो कि बहुत ही छूटा हुआ एक पॉइंट है, वो आप जरूर याद रखना। कंस्ट्रक्टिव आउटकम लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि रेस्क्यू खत्म हो गया, आप अपने घर चले गए, सो गए, उसके बाद भी वो अगर एक जो भी आपका प्रोटोगोनिस्ट है, अगर वो अपनी स्टोरी में आपने ये बताया कि ही हैज आल्सो टेकन पार्ट इन द प्लानिंग एक्सरसाइज, that shows constructive outcome, means long after the rescue he is still aware that what are the things going on. ओके हो सकता है इमोशनल होने के बाद उसने फ्लड के टाइम पे तो साथ दे दिया, उसके बाद तो घर बैठ के चला गया, घर बैठ गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है आपका वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। नाउ इन दिस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है, 60 वर्ड आपको दिए जाएंगे, हर वर्ड 15-15 सेकंड के लिए अपीयर होएगा, और आपके जो मन में पहला थॉट आता है, पहला सेंटेंस आता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 15 सेकंड के बीच बीच में जो पहला सेंटेंस, जो पहला थॉट आपके माइंड में आया, वो आपको लिखना पड़ेगा। और इससे क्या पता चलता है, व्हाट इट मेजर, इट मेजर योर एटीट्यूड, योर थिंकिंग पैटर्न। सबसे पहले आपका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नेगेटिव एटीट्यूड है, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, और आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस क्या है। उसके बाद योर एबिलिटी टू सी द पॉजिटिविटी इवन इन द न्यूट्रल और नेगेटिव वर्ड्स। तो अगर आपने किसी नेगेटिव वर्ड को भी पॉजिटिव में लिखते हो, तो उससे ये पता चलता है कि आपके पास एक एबिलिटी है कि आप क्राइसिस के टाइम पर भी कुछ पॉजिटिव आउटकम रिफ्लेक्ट कर सकते हो, कुछ ला सकते हो। आफ्टर दैट गाइडलाइंस क्या है, आप याद रखो कि राइट अफर्मेटिव प्रैक्टिकल एंड कंसाइज सेंटेंस, ऑलवेज ट्राई टू ऐड 4 वर्ड्स ओनली। ओके, ट्राई टू ऐड 3 to 4 वर्ड्स इन योर सेंटेंस, दैट्स ऑल। ठीक है, सन के बारे में या किसी के बारे में भी अगर आप कुछ वर्ड्स लिखते हो, and try to solve each 20 words every day so that your automatic response system will improve. Okay, now avoid moral lecture, copied quotes, किसी भी मोटिवेशन कोट्स को मत लिखो, ही शी दैट, द, डिटर्मिनर, ये सब यूज मत करो, कोई इडियम यूज मत करो। रिफ्लेक्ट अ डूअर्स माइंडसेट नॉट अ थिंकर्स ओनली। तो ये एक डूअर का माइंडसेट बताता है, एक थिंकर का माइंडसेट नहीं बताता, एक डूअर का माइंडसेट बताता है जो काम करने वाला। ओके, उसके बाद रहता है जी आपका लाइक फेलियर, एक वर्ड्स ले लेते हैं। नाउ वीक रिस्पॉन्स और स्ट्रॉन्ग ऑफिसर लाइक रिस्पॉन्स कैसा होगा, फेलियर, फेलियर डिप्रेसेस अ मैन, द वर्ड कम फेलियर, और आपने लिखा फेलियर डिप्रेसेस अ मैन, तो दैट ये एनालिसिस क्या करेंगे यार, इसका जो वीक रिस्पॉन्स है। अब दूसरा वर्ड क्या है, फेलियर मोटिवेट वन टू improve, isn't it? Failure motivate one to improve, that shows a strong officer like response. Okay, after that risk, risk is dangerous, अगर कोई लिखता है रिस्क, रिस्क बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, तो ये एक वीक रिस्पॉन्स है। अब अगर कोई ये लिखता है रिस्क हैंडल वाइजली ब्रिंग्स सक्सेस, risk handle wisely brings success. Okay, responsibility, responsibility is burden, for some people responsibility is burden. Okay, now he fulfill responsibility willingly, he fulfill his responsibility willingly, that shows strong officer like quality. These sentences show a weak officer like quality or weak response. Okay, those psychologists will look for the automatic positive and constructive thinking. ऑटोमेटिक पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग इज द नीड ऑफ आर, वही आपके अंदर चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। ठीक है, और वो आप इन सेंटेंसेस से रियलाइज कर सकते हो कि आपको वीक रिस्पॉन्सेज में क्या क्या नहीं लिखना है और आपको स्ट्रॉन्ग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में क्या क्या लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ लेट्स टॉक
टॉक अबाउट द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होगा, आपको 60 रियल लाइफ सिचुएशंस दे दिए जाएंगे। जैसे कि आप एसएसबी के लिए जा रहे हो और एसएसबी में जाते जाते आपका लगेज खो गया, आपका सामान खो गया, आपका मोबाइल खो गया, व्हाट वुड यू डू। ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ सिचुएशंस आपको दिए जाती हैं और रियल लाइफ सिचुएशन को आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर भी 15 सेकंड का टाइम है, अबाउट 30 सेकंड्स पर सिचुएशन आपको टाइम है, सोचना है और लिखना है। ठीक है, व्हाट इट मेजर, ये क्या चीज दर्शाती है आपकी जब अच्छे से आप डिसीजन ले सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज डिसीजन मेकिंग स्पीड, आपके मेंटल थॉट्स, आपके सोशल मैच्योरिटी, आपकी करेज, इनिशिएटिव एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। वो मंदिर वाले केस में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ आपकी करेज भी डिपिक्ट कर रहा था कि एक फॉरेन लड़की को मंदिर के कुछ बैगर्स उसको तंग कर रहे हैं और वो आप जाके कन्फ्रंट करते हो एंड टू सेव द फॉरेनर्स नॉट लाइफ बट टू सेव देम फ्रॉम हरासमेंट। तो इसमें आपकी करेज डिपिक्ट करती है। नाउ द आइडियल रिस्पॉन्स स्टाइल क्या होना चाहिए, सबसे पहले बी प्रैक्टिकल, फास्ट एंड करेजियस। आप गए, भाग कर गए और आपने विथस्टैंड किया, आपने उनको कन्फ्रंट किया। सो योर रिस्पॉन्स शुड बी इफेक्टिव, योर रिस्पॉन्स शुड बी फास्ट, योर रिस्पॉन्स शुड बी करेजियस एंड इट हैज टू बी प्रैक्टिकल विदाउट एनी इमोशंस। ऑलवेज टेक सम एक्शन, नॉट डिले और एस्केप। तो जल्दी से कोई भी एक्शन लिया करो, जल्दी से कोई भी पॉजिटिव एक्शन लिया करो उसमें। ठीक है, एंड ट्राई टू बी इन दैट शूज, अपने ऊपर वो सिचुएशन लेके देखा करो और अपने ऊपर सिचुएशन लेके देखोगे और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे तभी एसआरटी सॉल्व होगा। शो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपकी रिएक्शन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके रिएक्शन में एम्पैथी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, ओके। Now example situation, while traveling by the train you'll see the passengers bag stolen। आप ट्रेन से जा रहे थे और आपने देखा कि पैसेंजर्स, यू सी अ पैसेंजर्स, किसी पास के पैसेंजर का बैग गुम हो गया। रिस्पॉन्स, ही इमीडिएटली इन्फॉर्म्स द टीटी, पुल्स चेन इफ नीडेड, हेल्प कैच द थीफ एंड सिक्योर पैसेंजर्स बिलोंगिंग। अवॉइड इमोशनल ओवर रिएक्शन और अनसेफ हीरोइज्म, शो रैशनल करेज। मतलब यार अगर आप वो चोर से भिड़ जाओगे, हो सकता है चोर के पास कोई चाकू हो, आपको चाकू दे के मारे, हो सकता है उसके पास कोई गन हो। ठीक है, तो डोंट डोंट बी अ हीरो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी अ हीरो, डोंट शो दैट यू आर अ शक्तिमान और बैटमैन और आप उसको मार दोगे, हो सकता है उसके पीछे कोई और भी हो। ठीक है, तो ट्राई टू बी वेरी प्रैक्टिकल बट शोज करेज ऑल्सो, शोज एम्पैथी ऑल्सो एंड ट्राई टू टेल द लोकल पुलिस वाला और द टीटी और द आरपीएफ पुलिस। ओके, नाउ आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम देखते हैं एसडीटी। नाउ व्हाट हैपन इन एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। यू राइट 5 पैराग्राफ्स ऑन, आप 5 पैराग्राफ्स लिखोगे। 5 पैराग्राफ्स में क्या क्या होगा, सबसे पहले व्हाट योर पेरेंट थिंक्स ऑफ यू, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में। आप अपनी पापा की जगह चले जाना और अपनी पापा की जगह जाके आप लिखना कि टेस्ट नंबर 27 के बारे में उसके फादर क्या सोचते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। आप व्हाट योर टीचर थिंक, एम्प्लॉयर थिंक ऑफ यू, आपके टीचर, सपोज मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ और उससे एसडीटी रिस्पॉन्स को मेजर किया जाता है। आफ्टर दैट योर फ्रेंड्स हु इज सिटिंग बिसाइड्स यू, व्हाट दे थिंक ऑफ यू, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, और आप अपने बारे में क्या सोचते हो एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम after 5 years, after 2 years, after 10 years, what do you want to become in your life. So write, if you write all these 5 paragraphs, all these 5 questions, then you will try to analyze yourself, you will try to introspect you by yourself, that who I am exactly. Okay, now after that, what it measures, self awareness, consistency, and whether your self image matches your projected image in other tests. Self image is matches with the projected image of your father, because you projected what your father thinks of you, you projected what your teacher think of you, you projected what your colleagues think of you. So your self image is inclined or it's matches with your projected image or not, ये check होता है SDT से। लेवल ऑफ मेच्योरिटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट माइंडसेट, इससे आपका लेवल ऑफ मेच्योरिटी पता चलता है और आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट माइंडसेट के बारे में भी दर्शाते हैं एसडीटी टेस्ट से।
ओके, आगे चलते हैं, इसको टिप्स देखते हैं। टिप्स देखते हुए, बी ट्रूथफुल येट बैलेंस्ड, आप अपने बारे में ट्रूथफुल रहो, आप अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे भी ट्रूथफुल रहो, बैलेंस रहो। मेंशन 1 or 2 वीकनेस विद द इम्प्रूवमेंट एफर्ट, आप अपनी वीकनेस वो बताओगे जहां पर उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो वीकनेस मस्ट बी इम्प्रूवेबल। एंड अवॉइड एग्जेसरेशन और आइडियल परफेक्शन, अवॉइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दैट यू वांट टू win the World Cup championship, or you want to win the world bodyweight championship or something, to try to avoid that extra exaggeration. So show a progressive mindset, always learning and improving. So तो आपकी मैच्योरिटी में ये डिपिक्ट होना चाहिए कि इस बच्चे का माइंड प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लिए था, पहले वो वीक था, पहले उसके 60% आते थे, फिर 65 आए, फिर 670 आए, और 70 के बाद उसने बहुत मेहनत करी तो 75 आ गए। डोंट से कि सारी रात पढ़ता रहा और 10 दिन के बाद उसके 90% आ गए, दैट इज कॉल्ड द ओवर अचीविंग समथिंग। ओके, डोंट बी लाइक दैट गाय। Example, my teachers find me sincere, curious. Uh, I sometimes takes times to open up in the large group, but I am improving by participating more actively. Sorry. So your teacher thinks of you as a curious guy, as a good guy, a sincere guy, and sometime what is your weakness? Your weakness is you do not participate in a group, in a large group. You are not open up with the people so easily, but eventually you are participating with 1 or 2 people and you trying to overcome this problem. Clear? Okay, let's go further. We are on the this slide. What psychologists look for कोर OLQs, कौन कौन सी कोर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, जो साइकोलॉजिस्ट भी देखते हैं। नाउ, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, तो आपके अंदर एक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती है। आप GTO टेस्ट दोगे, GTO टेस्ट में GP होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, उसमें भी ये एनालिसिस किया जाता है। ना, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी से पता चलता है योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, योर रीजनिंग, योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। So effective intelligence, reasoning, organizing ability, power of expression. You know that Ramesh, he has organized local authority, he has organized some people to help the uh, flooded people. Okay, so that's called the organizing ability. His effective intelligence is that he has made some boat out of motorcycle or something. ठीक है, अब सब सोशल एडजस्टमेंट क्या है? अडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। तो हाउ डू यू कैन शो द सोशल एडजस्टमेंट? जब आप अपने लोगों के साथ एक अडेप्टेबिलिटी में रहोगे, आप सिविलाइज मैनर में सबके साथ रह रहे हो, और आप कोऑपरेट कर रहे हो सबके साथ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ रहे हो कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई विल नॉट डू दिस। आफ्टर द सोशल इफेक्टिवनेस, सोशल इफेक्टिवनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड लाइवलीनेस एंड करेज। तो आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि रमेश ने सारे अथॉरिटी को और सारे वॉलेंटियर को इकट्ठा कर लिया था। तो यहाँ पर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो इज डिपिक्टेड द इफेक्ट सोशल इफेक्टिवनेस। डायनामिक क्वालिटी, डायनामिक क्वालिटी में क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन। अब उसका डिटर्मिनेशन था कि वो कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा था, नॉट एज इमोशनली उसने फ्लड में काम किया, बट उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम था पूरे विलेज का, उसमें भी उसने काम किया। स्टेमिना, डिसीजन मेकिंग, करेज अंडर स्ट्रेस। तो करेज अंडर स्ट्रेस मींस माइट बी सम टाइम पानी बहुत ज़्यादा था पर फिर भी वो अंदर जाता था, आगे जाता था, और कुछ जो एल्डरली पीपल, कुछ बच्चे, कुछ विमेंस और कुछ जानवर, उनको बचा के लाता था, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ ईच साइकोलॉजिकल टेस्ट रिफ्लेक्ट मल्टीपल OLQs इनडायरेक्टली। तो हर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में काफ़ी सारी मल्टीपल OLQs डिपिक्शन होता है यहाँ पर। ओके, हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली, आप इन चीज़ों को इफेक्टिवली कैसे प्रिपेयर करोगे? मेक अ गुड पॉइंट इन इट। रीड रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ लीडर्स एंड ऑफिसर्स टू ऑब्जर्व द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। अगर आप रियल लाइफ स्टोरीज को पढ़ोगे ऑफिसर्स की, करियप्पा, थैमैया एंड मैनी मोर ऑफिसर्स, उनकी रियल लाइफ स्टोरीज पढ़ोगे, जैसे कि सैम मानेक शॉ, आप अगर उनकी रियल लाइफ स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे किया था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवी, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक्स रिलेटेड ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दोज पीपल, ऑफ दोज ऑफिसर्स। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स को देखोगे तो यू हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ऑल्सो।
So practice writing fast, at VAT, SRT under the time limit. Always try to have a good endurance while writing TAT, while writing SRTs, while writing WAT. ठीक है, तो with practice your endurance will also increase. Okay, after be genuine, psychologists spot fake instantly. आप जेन्युइन रहो, आप ऑनेस्ट रहो, आप रॉ रहो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, चाहे अच्छा बुरा कैसा, बुरा आना नहीं चाहिए, आप रॉली उनको एग्जाम्पल दो, आप रॉली उनको आंसर करो, सो दे विल इंटरप्रेट यू एज अ गुड पर्सन और गुड ऑफिसर, फ्यूचर ऑफिसर. So reflect daily, write one or two tat VAT responses, analyze if they shows positivity and initiative. So try to write stories, one or two story daily. Try to practice 15 to 20 SRTs. Try to practice 15 to 20 WAT daily. Okay, and try to write SDT also. Keep mind calm, observant, avoid memorized templates. Do not try to memorize the word, do not try to memorize the situation, do not try to memorize anything. Try to avoid these templates. Okay, now the last one, uh, the key secret, read real life stories. हमने हो गया. Where are we? Okay, now psych test is not about your English test, it's just a clarity, and that's all. So clarity prevails over fancy language. If you are not using the fancy language, modern advanced English language, then only there are some thereafter also there are some chances that you will be selected as an officer. आप अपने thoughts में clarity रखो. टाइम प्रेशर रिवील्स ट्रू इंस्टिंक्ट एंड नॉट मेमोरी. तो बिकॉज टाइम प्रेशर में आप अपने ट्रू इंस्टिंक्ट्स को रिवील करते हो, आपकी मेमोरी में जो स्टोर है वो सब चीज़ें रिवील नहीं होती हैं. योर रिस्पॉन्स मस्ट शोज कंसिस्टेंसी अक्रॉस टैट, डब्ल्यू ए टी, एस आर टी, एस डी टी. तो आपके रिस्पॉन्स क्या शो करते हैं टैट में, एस आर टी में और एस डी टी में, कि आप एक कंसिस्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी है. The psychologist makes a personality sketch from all the answers and it matches with the IO GTO observe, you will get recommended. अब आपके साइकोलॉजिस्ट इन सारी चीज़ों का एक स्केच तैयार करेंगे, इन सारी चीज़ों का वो मार्क्स तैयार करेंगे, और अगर ये मार्क्स और अगर ये माइंडसेट आपके आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर या फिर आपके जीटीओ ऑफिसर के साथ मैच करता है, तो आप एक रिकमेंडेड कैंडिडेट कहलाते हो और आपको मेडिकल टेस्ट से गो थ्रू करना पड़ता है. Last but not the least, this is the summary, and we have seen the summary so far. So from my side I must say best of luck, and try to improve your psych test, try to improve your mental state, try to improve your decision making skills and all. With that, your dream of wearing uniform will be fulfilled as early as possible. Very much. Jai.